پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ہم چاہے جیل میں ہوں یا باہر ہر حال میں اس حکومت کو ختم کر کے رہیں گے۔ کارکن تیاری کر لیں، اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، سڑکوں پر رہیں گے اور اس حکومت کے خاتمے تک واپس نہیں آئیں گے۔ حکومت برقرار رہی تو پاکستان 100 سال پیچھے چلا جائے گا، وہ گھڑی خدا بخش میں ذوالفقار بھٹو کی برسی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ میرے کو ان کی نیت پہ شک ہے، بھی ترمیم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھ پہ یہ کیسز بنا رہے ہیں۔ کل تک ان کے منسٹر کہتے تھے کہ 18ویں ترمیم کو ہم نہیں رول بیک کریں گے، آج خود سلیکٹڈ پرائم منسٹر پھٹ پڑا اور کہا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے اکٹھا نہیں ہو رہا، کوئی نہیں ہو رہا ہے FBR سے تم سے اکٹھا، تو تم چھوڑ دو۔ اب وہ وقت آ گیا ہے دوستوں کہ ہم کوچ کریں اور اسلام آباد پہ چلیں اور ان کو اتاریں، وہاں سے نکالیں، اور یہ اس لیے نہیں میں کرنا چاہتا کہ مجھے حکومتوں کرنے کا شوق ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس کو ہم نے رکھا اور اس کو رہنے دیا تو یہ پاکستان کو ویسے ہی 50 سال پیچھے لے گیا ہے، اب یہ 100 سال پیچھے لے جائے گا۔ جب سے یہ آیا ہے ڈالر 40 روپے اور مہنگا ہو گیا، ہر چیز ڈبل مہنگی ہو گئی، تیل ڈبل مہنگا ہو گیا، تو اس طرح میرا غریب جی نہیں سکتا۔ اب تیار ہو جاؤ کہ وقت آیا ہے ان کو گھر بھیجنے کا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چاہے میں جیل میں ہوں یا میں باہر ہوں، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نکال کے رہے گی۔ اب ان کو ہم ٹائم نہیں دے سکتے، ہم روڈوں پہ ہی لیٹے رہیں گے، بستروں میں وہیں بیٹھے رہیں گے، ان کو نکال کے پھر واپس آئیں گے۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر اعظم عمران خان کو سخت وارننگ دے دی ہے کہ کہا 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی تو لات مار کر حکومت ختم کر دیں گے۔ وفاق کو سندھ نہیں، اس کی گیس اور پانی چاہیے۔ آج وفاق سندھ کے 120 ارب روپے پر سانپ بن کر بیٹھا ہے۔ وہ گڑھی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو کی برسی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ میں وارم کر رہا ہوں، تم 18ویں ترمیم کو مت چھیڑو، تم 18ویں ترمیم ختم کرنے کی کوشش کرو، 1 یونٹ لاگو کرنے کی کوشش کرو، میں ایک لات مار کر آپ کا حکومت ختم کر دوں گا۔ حکومت چابی سے نہیں اور ملک جادو سے نہیں چلتا۔ اس حکومت سے نہ معیشت چل سکتی ہے اور نہ ہی ملک۔ وفاقی وزیر خزانہ کہتا ہے کہ ان کی معاشی پالیسیز کی وجہ سے عوام کی چیخیں نکلے گی۔ یہ وزیر ہے یا معاشی دہشت گرد؟ اسے سندھ نہیں، سندھ کی گیس چاہیے، اسے سندھ نہیں، سندھ کا پانی چاہیے۔ وہ آج بھی سندھ کے 120 ارب روپیہ پر سانپ بن کر بیٹھا ہے۔ اور سابق وزیر اعظم اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 40ویں برسی پر گھڑی خدا بخش میں کارکنوں کا جوش و خروش نرالا تھا۔ کارکنوں نے پارٹی ترانوں پر رقص کر کے سما باندھ دیا۔ کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ تبدیلی کی دعوے دار حکومت کے عام آدمی کو سہولتیں دینے کے دعوے دھرے رہ گئے۔ سونا، اشیاء ضروریات، برائلر اور ادویات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے شہریوں کا بھرکس نکال دیا۔ تبدیلی سرکار سے نالا عام شہری، صنعتکار اور تاجر بھی پھٹ پڑے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں تبدیلی کی دعوے دار اس حکومت کے عوام کے ساتھ عام آدمی کو سہولتیں دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، جبکہ سونا، اشیاء ضروریات، برائلر اور ادویات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے شہریوں کا بھرکس نکال دیا۔ اور ادویات کی قیمتیں 400% تک بڑھ گئیں، مگر وفاقی وزیر صحت لا علم رہے۔ اجلاس میں پوچھتے رہے کیا قیمتیں بڑھ گئیں، کیسے بڑھیں، کس نے بڑھائیں۔ ادویات ساز کمپنیز کے خلاف کارروائی کا اعلان بھی کر دیا۔ پنجاب کی وزیر صحت نے سارا ملبہ وفاق پر ڈال دیا۔ ہم جہاں ہیں وہاں سے کوئی خبر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی،
अब किसी बात पर नहीं आती। ऐसा ही हाल है तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत का। अद्वियात की कीमतें 100% नहीं, बात की तो 400% बढ़ गई। मगर वजीर सेहत आमिर कयानी इजलास में हैरत से पूछते रहे, क्या कीमतें बढ़ गईं? कैसे बढ़ गईं? किसने बढ़ाई? फिर कहा जिन्होंने बढ़ाई उन्हें सजा मिलेगी। वजीर सेहत ने ये बातें अद्वियात की कीमतों में इजाफे की खबरों पर बुलाए गए हंगामे इजलास में कही। दूसरी तरफ मुल्तान में पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, हाँ कीमतें तो बढ़ी मगर ये वफाकी हुकूमत का मसला है। उनका कहना है कि कीमतें बढ़ने की वजह डॉलर का बढ़ना है, मगर ये भी मरकजी हुकूमत का मसला है। कीमतें बढ़ाने वाली कंपनीज के नुमाइंदे भी यही बयान दाग रहे हैं। अब पता नहीं यास्मीन राशिद कीमतें बढ़ाने वालों से मिली हुई है या फिर कंपनीज यास्मीन राशिद से, या इन दोनों से। वफाकी वजीर सेहत जिन्हें मालूम ही नहीं कि कीमतें बढ़ गईं। इस सारे खेल में आम आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं। जबकि अद्वियात की कीमतों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी। जिंदगी महंगी और मौत सस्ती लगने लगी। लोग कह रहे हैं मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। अद्वियात की कीमतें बढ़ने से आम आदमी शदीद परेशान है। सफेद पोश घरानों के लिए तो इलाज जैसी बुनियादी जरूरत भी अब नायाब होती जा रही है और गरीब आदमी के लिए खत। इस सूरत हाल पर इस्लामाबाद के शहरी कहते हैं, खुदारा कोई आम गरीबों के लिए कुछ आप मेहरबानी करें, इसके लिए कुछ दवाइयों या मेडिसिन का या कोई भी गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए। मेरा तो हुकूमत से ये पैगाम है कि थोड़ा सा किसी तरह मैनेज करें। ऑलरेडी महंगाई है हर चीज़ में, गरीब आदमी के लिए सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने कहा था कि गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो गरीब मिटाओ प्रोग्राम पे आ गए। कीमतें बढ़ने का कोड़ा लाहौरियों की पीठ पर पड़ा तो वो भी शिद्दत तकलीफ से बिलबिला उठे। हुकूमत तब्दीली का नारा लेके आई थी, चाहिए तो ये है कि इसको ना मजीद कमी करती, क्योंकि जो मरीज है पहले पिसा हुआ है। ये जो अपना मेडिकल स्टोर जो है, मैंने कसूर से भी दवाई ली है, वो मेरा भट्टी अस्पताल से। भट्टी अस्पताल तो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चुका है। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के शहरी भी इंसाफ के अलमबरदारों से सस्ते इलाज के तलबगार हैं। दवाइयाँ मेरे ख्याल से सस्ती होनी चाहिए और इसके ऊपर जो उन्होंने फुल टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं इसको कम करना चाहिए। आवाम को पहले ही रिलीफ नहीं मिल रहा, हर चीज़ महंगाई की तरफ जा रही है। अगर ये जो बुनियादी ज़रूरतें की चीज़ें तो उसमें अगर इतनी महंगाई होगी तो उसका तो डेफिनेटली असर पड़ेगा। जिंदगी इस कदर महंगी हो गई है कि अब गरीबों की मौत सस्ती लगने लगी है कुछ इलाज इसका भी एचारा गिरा के नहीं। अद्वियात, पेट्रोल और एलपीजी के बाद अब आवाम को बिजली का झटका लगेगा। नेपरा ने बिजली 81 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। मुल्क में महंगाई का तूफान, गैस और पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी। पेट्रोल, गैस और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा होने के बाद अब बिजली की फी यूनिट कीमत 81 पैसे बढ़ा दी गई है, जिससे सार्फिन पर मजीद 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक आइंदा माह से होगा और ये इजाफा फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा का कहना है कि गैस की कीमतों में इजाफे से 3 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ा है। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। सियासी जमातें बिजली के बिलों में इजाफे का सिर्फ वावेला कर रही हैं या वाकई ही तब्दीली सरकार ने बिजली की कीमतों में इजाफे के रिकॉर्ड तोड़ दिए? ये जानते हैं इस्लामाबाद से अवैस कियानी की रिपोर्ट में। तब्दीली सरकार ने बिजली की कीमतों में ऐसे इजाफे किए कि सबको पीछे छोड़ दिया। सिर्फ 9 माह में 6 रुपए 49 पैसे तक इजाफा किया। दस्तावेज के मुताबिक पीटीआई हुकूमत के 7 माह में 6 मरतबा बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मजमूई तौर पर अब तक 5 रुपए 12 पैसे फी यूनिट तक इजाफा किया गया और 50 अरब रुपए से ज्यादा की इजाफी रकम अवाम से बटोरी गई। बिजली के टैरिफ में 1 रुपए 27 पैसे फी यूनिट का इजाफा हुआ, जिसकी सालाना मालियत 200 अरब रुपए है। वजारत तवानाई ने गुज़िश्ता हफ्ते ये खबर भी दी थी कि अगले कुछ माह तक 2 रुपए फी यूनिट मजीद बिजली महंगी की जाएगी। इसके साथ सार्फिन के लिए एक बुरी खबर ये भी है कि अरसा दराज से बिजली के बिलों में वसूल किए जाने वाला नीलम जेलम सरचार्ज जुलाई तक देना होगा, मगर अब हुकूमत इस सरचार्ज को खत्म करने की बजाय मेमन डैम सरचार्ज का नाम देने का भी सोच रही है। अवैस कियानी, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। रहीम यार खान हादसे के बाद रेलवे का निजाम अब तक ठीक नहीं हो सका। ट्रेनों की आमदरफ्त में घंटों की ताखीर हो गई। बातों का इंजन चलाने वाले वजीर रेलवे शेख रशीद 3 दिन बाद भी ट्रेनों को मामूल पर नहीं ला सके।
रहीम यार खान पर माल गाड़ी पटरी से क्या उतरी, 3 रोज बाद भी रेल गाड़ियों को पटरी पर बहाल न कराया जा सका। जुमेरात को कराची से जाने वाली कराकोरम एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई, जबकि पाकिस्तान एक्सप्रेस, जिक्रिया एक्सप्रेस समेत मुताबिक ट्रेनें 8 से 10 घंटे ताखीर का शिकार। रेलवे हुकाम का कहना है कि रहीम यार खान पर ट्रैक को तो बहाल कर दिया गया है, मगर सूरत हाल मामूल पर आने में अभी मजीद 1 दिन लगेगा। ट्रेनें ताखीर का शिकार होने के बायस मुसाफिर रेलवे स्टेशनों पर शदीद परेशानी के आलम में वक्त गुजारते हैं। उन्हें रेलवे की तरफ से कोई सहूलत फराहम नहीं की गई। जो ट्रेनें मंसूख की गई, उनके मुसाफिर टिकट रिफंड के लिए परेशान नजर आए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान MQM के सदके वारी जाने लगे। माजी में मुत्तहिदा को दहशतगर्द जमात करार देने वाले इमरान खान ने आइंदा इलेक्शन उनके साथ मिलकर लड़ने का इंदिया दे दिया। कहा कि मुत्तहिदा और हमारा नजरिया एक है। हमेशा समझता था कि जो MQM का जो नजरिया है, जो आप बातें करते, वो तहरीक इंसाफ से मिलती थी। हमेशा जब से मैंने पार्टी शुरू की, मैंने कहा भी हुआ है, पहले भी कहा हुआ है, जब मेरे खिलाफात भी थे तो मैं ये कहता था। हमारी कैबिनेट बनी तो 2 वजीर फरूख और खालिद हमारी कैबिनेट में आ गए। मैं तो नहीं इन दोनों को जानता, तो हमें खौफ था। मैं कहा पता नहीं ये वो जिनकी बैकग्राउंड क्या है, कोई हमारी कोई बात मानी ना गई तो शायद बंदूक ही ना निकल जाए कैबिनेट पे, हम ये डरे हुए थे। लेकिन मैं आज ये कहता हूं कि इनसे ज्यादा यानी नफीस हमारे कैबिनेट मेंबर्स इन 2 से ज्यादा नहीं। इंशाल्लाह अगला इलेक्शन लगता है हम इकट्ठे लड़ेंगे। उधर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान ने जिस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया, उसका ऐलान मियां नवाज शरीफ 27 मार्च 2017 को पहले ही कर चुके हैं। ऐलान शुदा वफाकी हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद में फिर से ऐलान करना मुज़हिका खेज है। बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट बना, हम हैदराबाद में एक बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट इंशाल्लाह बनाने के लिए फैसला किया। हमने हैदराबाद को यूनिवर्सिटी दी जाती है। ऐलान कर रहा हूं कि इंशाल्लाह हैदराबाद में भी एक मेट्रो बस बनेगी। हम हैदराबाद में एक बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट इंशाल्लाह बनाने के लिए फैसला किया। हमने हैदराबाद को यूनिवर्सिटी दी जाती है। ऐलान कर रहा हूं कि इंशाल्लाह हैदराबाद में भी एक मेट्रो बस बनेगी। और अहम खबर के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ ने मुलाकात की है, जिसमें मुल्की सिक्योरिटी उमूर और सलामती से मुतालिक मामलात ज़ेर गौर आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में हुई है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुसल्लह अफवाज की दिफाई और ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान भी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ ने मुलाकात की है, जिसमें कई सिक्योरिटी और मुल्की सलामती से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में हुई। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने मुल्जिमान को हथकड़ियां लगाना शरई कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। औरत मार्च के दौरान लगने वाले नारों पर भी इजहार तशवीश कर दिया। गौहर महसूद की रिपोर्ट इसी बारे में। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज ने नैब की जानिब से मुल्जिमों को हथकड़ियां लगाने का अमल गैर आईनी और गैर शरई करार दिया। नैब की तरफ से मुल्जिमों को हथकड़ियां पहनाना, ये हमने महसूस किया, हमने इस पे बहस की, ये पाकिस्तानी कानून और इस्लामी शरीयत की खिलाफ वर्जी है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के इजलास में बहावलपुर के प्रोफेसर खालिद और मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमलों की मजम्मत की गई। महज जायदाद की खातिर मां से ऐसा सलूक, खून वाकई सफेद हो गया। लाहौर के इलाका निश्तर कॉलोनी में बेटी जायदाद हथियाने के लिए अपने शोहर और बाअसर शख्सियत के साथ मिलकर मां पर तशद्दुद कराती रही और जाते जाते संगीन नताइज की धमकियां भी दी। सीसीटीवी फुटेज ने जुल्म की सारी कहानी बयान कर दी। ये इंसानियत सोज वाकया लाहौर के निश्तर टाउन में पेश आया है, जहां पर बेटी जायदाद हथियाने के लिए मां पर तशद्दुद कराती रही। सीसीटीवी फुटेज इसकी सामने आ गई है, जो कि इस जुल्म की दास्तान को बयान कर रही है। और शादी जिसकी मर्जी से हो, सलामी पुलिस वाले लेंगे। गुजरांवाला में कांस्टेबल मैरिज हॉल मालिक से मंथली वसूल करने लगा। मैरिज हॉल के मालिक इनाम का कहना है कि वो 1 साल में 1 लाख से ज्यादा रकम दे चुके हैं।
पैसे लेने की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। रिश्वत लेने वाला कांस्टेबल तनवीर चौकी धर्मकोट में तैनात है और SHO गरजाक का भाई है। आपको बताएं कि ये गुजरांवाला का वाकया है, जहां पर मैरिज हॉल से पुलिस की जानिब से मंथली वसूल की जाती है। मैरिज हॉल के मालिक के नाम का कहना है कि वो 1 साल में 1 लाख से ज्यादा रकम दे चुके हैं। इसकी सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। कराची से खबर है, जहां स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो गया। गुलिस्तान जौहर में मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात हुई। दूसरी जानिब मुख्तलिफ इलाकों से 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बारे में समर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। कराची में डकैती की वारदात में बड़े असलहे का इस्तेमाल होने लगा। गुलिस्तान जौहर में मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात हुई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में मुसल्लह मुल्जिमान को कलाशनकोफ के जोर पर दुकान का सफाया करने के बाद फरार होते देखा जा सकता है। दूसरी जानिब न्यू कराची खतरी मोहल्ला में शहरी को लूट लिया गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान ने किस तरह शहरी को लूटा और फरार हो गए। उधर एयरपोर्ट पुलिस ने कार्रवाई करके लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर पैसे लेने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पंजाब और सिंध के कई शहरों में जालसाजी के बाद कराची में रोपोश थे, जबकि सुखन पुलिस ने कार्रवाई करके 5 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान से 5 किलो से जायद चरस और नकदी बरामद की गई है। और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्कगीर 26 कार्रवाइयां करते हुए 5 खवातीन समेत 34 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 93 करोड़ 75 लाख रुपए मालियत की मनशियात बरामद कर ली गई। बरामद शुदा मनशियात में चरस, अफ्यून, हेरोइन और मैथ एफर्टाइन शामिल हैं, जबकि कार्रवाइयों के दौरान 9 गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गई हैं। तो मनशियात भारी मिकदार में बरामद की गई हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मुल्कगीर 26 कार्रवाइयां करते हुए 5 खवातीन समेत 34 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा का एक और कारनामा सामने आ गया। जूनियर को सीनियर डॉक्टरों का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। इंतजामिया के फैसले के खिलाफ लेडी रीडिंग अस्पताल के 6 सीनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। अस्पताल में ग्रेड 19 और 20 के डॉक्टर मौजूद होने के बावजूद बरतानिया पलट डॉक्टर सलेमान को मेडिकल डायरेक्टर लगाया गया है। उधर इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक अस्पताल में जिन्स की तब्दीली का कामयाब ऑपरेशन हो गया। बुशरा बीबी नामी खातून ऑपरेशन के बाद मर्द बन गए। इस्लामाबाद के पॉलीक्लिनिक अस्पताल में जिन्स की तब्दीली का कामयाब ऑपरेशन हो गया। बुशरा बीबी नामी खातून ऑपरेशन के बाद मर्द बन गई। दौरान ड्यूटी रक्स करना महंगा पड़ गया। डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल के 3 लैब असिस्टेंट्स को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। शोबा पैथोलॉजी में ट्रेनी लैब असिस्टेंट्स दौरान ड्यूटी रक्स करते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुई तो MS ने एक्शन ले लिया। पंजाब हुकूमत की बड़ी नाअहली सामने आ गई है। लाहौर में होने वाली पंजाब गेम्स के नाकिस इंतजामात ने सूबाई हुकूमत की अहलियत का पर्दा चाक कर दिया। वज़ीर खेल ने बद इंतजामी का नोटिस ले लिया। बजट करोड़ों का, इंतजामात कोड़ियों के। पंजाब गेम्स के नाकिस इंतजामात पर खिलाड़ी फट पड़े। लाहौर में होने वाले पंजाब गेम्स में शरीक खिलाड़ियों का कहना था ना किट ना जूते, नंगे पांव दौड़ लगाने पर मजबूर हैं। 15 एथलीट्स को एक ही कमरे में रखा जा रहा है। हमारे पास स्पाइक्स नहीं थे, मैं नंगे पाँव में दौड़ लगाई है और हमारे पाँव में छाले पड़ गए, फिर भी मैं थर्ड हुआ। अपने पैसे कुछ साथ लेकर आए थे तो उसी में गुजारा कर रहे हैं। हल्का फुल्का मिल जाते तो ज़्यादा बेहतरी होती, थोड़ी सी तंगी होती है। यहाँ पर आए हैं नाकिस इंतजाम थे और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमें ट्रैक सूट भी नहीं मिला और उसके अलावा शूज़ का साइज भी दिया था, वो भी नहीं मिला, हालांकि हमसे सिग्नेचर वगैरह कर ली है। एथलीट्स का कहना है फर्श पर सो रहे हैं, पंखा कभी चलता कभी नहीं। इब्तिदाई तकरीब की रात बदबूदार खाना दिया गया। खाना में दिया, बिरयानी दी बदबू थी, किसी खिलाड़ी ने नहीं खाया। तकरीबन कम से कम गवर्नमेंट का 20 से 30 लाख का नुकसान इन्होंने किया है। ये सारी ये माफिया है। हमारे कमरे में तकरीबन 20 लोग हैं,
2 पंखे हैं। दूसरी जानिब पंजाब गेम्स में नाकिस इंतजामात पर हुकूमत को भी होश आ गया। वजीर खेल पंजाब का नोटिस लेते हुए कहना था, खिलाड़ियों के तमाम मसाइल को हल किया जाएगा, नाकिस इंतजामात करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। आपको दें कि सेक्रेटरी एविएशन और डीजी सिविल एविएशन की हिदायत पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने छोटा तैयारा बनाने वाले पाक पतन के रिहायशी मोहम्मद फयाज को उसका तैयारा वापस दिलवा दिया। DGCAA शाहरुख नुसरत का कहना है कि वो तैयारा बनाने वाले नौजवान के जज्बे और महारत की कदर करते हैं और इस शोबे में उसकी रहनुमाई की जाएगी। सेक्रेटरी एविएशन और डीजी सिविल एविएशन की हिदायत पर छोटा तैयारा बनाने वाले पाक पतन के रिहायशी मोहम्मद फयाज को उसका तैयारा वापस दिलवा दिया गया है।